So hello everyone and welcome to Career Launcher. So as you can see the thumbnail, in this class we will be discussing about the WAQF Amendment Bill 2024. So आज के इस क्लास में हम लोग WAQF Amendment Bill 2024 पढ़ेंगे. So if I am audible and visible, please write in the comment section yes sir you're audible. मेरी आवाज आ रही है? Am I audible guys? Am I audible? If I'm audible, please write in the comments. Yes, sir, you're audible. Good evening, Ansh. Good evening, guys. Am I audible? Okay, so am I audible? Okay, fine. Yes. So I've checked by myself. Now, so सबसे पहले we'll be discussing something about it. So सबसे पहले, can you please tell me if I'm writing it amendment here, which law is being amended? Or changed? Yes. Yes. Good evening, Tanishka, Vamma, Mishika, Ansh. सो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया है जो कि किसी एक लॉ को चेंज करेगा, राइट? बिकॉज दैट्स व्हाई द वर्ड द वक्फ ब्रैकेट में अमेंडमेंट बिल 2024. सो व्हिच लॉ इज बीइंग चेंज्ड? सो इफ यू नो द आंसर प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई एम वेटिंग फॉर इट. नाउ सेकंड थिंग, इन दिस class we'll be discussing something. So something might be let's say controversial or contentious, so let me clarify it. So I will be giving both the opinions. दोनों साइड की बात बता देंगे, ठीक है? ठीक है, आई विल नॉट बी रीचिंग टू द कंक्लूजन एंड ऑल कि कौन सही कौन गलत है, बिकॉज इवन आई डू नॉट नो, बट यस आई विल एक्चुअली गिव, मैं दोनों पक्ष की बात बता दूंगा कि क्या गवर्नमेंट की राय है और क्या अपोजिशन जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो अपोज कर रहे हैं, उनकी क्या राय. यस मिशिका यू आर राइट, नीवे यू आर आल्सो राइट. एक्चुअली इट इज अमेंडिंग द वक्फ एक्ट ऑफ 1995. इस कानून को चेंज कर रहा है. अमेंडिंग मतलब टू चेंज समथिंग, टू ऐड समथिंग, टू इंसर्ट समथिंग, टू रिमूव समथिंग, है ना? So इसीलिए that is why this is called as WAQF Amendment Bill 2024. So in this chapter, in this class, I will be giving you question answer also, and plus some theory portion also. ठीक है? So let's begin with the question. The first question says, who is currently the Minister of Minority Affairs? Yes. Good evening, guys. Good evening, Tanishka, Mishika, Kashish. Who is currently the Minister of Minority Affairs? Please tell me. Yes, Mishika, Rashi, just saying, Mukti Sharma, Nive, you all right. The right answer is option D. Actually, all are actually from the BJP political party. And the correct answer here is Mr. Kiran Rijiju is the Minister of Minority Affairs. Yes, Mukti Sharma, Tanishka, you all are right. So Kiran Rijiju, actually he initiated or the WAQF Amendment Bill. ठीक है? So here you can see. And the opposition actually has said that it is an attack on religious freedom and all. अच्छा, जब रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस फ्रीडम, व्हिच आर्टिकल शुड कम टू योर माइंड? व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड कम टू योर माइंड? बताइए. कौन सी आर्टिकल आना चाहिए? प्लीज टेल मी. यस, वेरी गुड मुक्ति शर्मा. आर्टिकल 25 इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट रिलीजियस फ्रीडम. ठीक है? यस, गुड. I'm happy that you know these things. Okay, yes, fine. Just saying you are also right. Now, what is the meaning of waqf? इसका मतलब क्या होता है? I have not given option because I believe that you should know it. Religious freedom 25 से 28, but 25 is the most perfect. Yes, Tanishka, Kashish, Mishika, you all are right. ठीक है? Donation. Yes, Tanishka, very good. waqf का मतलब होता है to donate. या डोनेटेड, डिपेंड करता है कौन सी कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है ना. सो यस, चैरिटी. यस, सो बेसिकली द वक्फ, है ना, आप पढ़ सकते हो इफ यू सी द डिक्शनरी मीनिंग, एन इस्लामिक एंडोमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू बी हेल्ड इन ट्रस्ट एंड यूज फॉर अ चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस. देखो होता क्या है, सो दिस एक्चुअली वक्फ मींस, लेट्स से देयर आर थिंग्स व्हिच आर फॉर कम्युनिटी, है ना? जैसे मान लो लेट्स से मॉस्क इज देयर,
सिमिलरली ग्रेव यार्ड जिसको कब्रिस्तान कहते हैं, देन मदरसा, ओके, मकतब भी होता है, वही वेरी सिमिलर टू मदरसा. सो एंड देन द लॉट ऑफ डिफरेंट रिलीजियस हॉल्स, बिल्डिंग्स होता है, ठीक है. जैसे यू मस्ट हैव हर्ड इट, like Hajj Bhavan is there, you will find in Delhi, in everywhere, I mean in all the capitals and all. So these all are actually from the donated land, okay, so land donated by someone, okay, like that, okay. Or so these are actually called as waqf. Now so we'll be discussing about this in detail in this class. Now please tell me another question. Why I'm asking this question? Because this actually was mentioned by Mr. Kiran Rijiju while producing the bill. So when he was giving the speech in parliament, he mentioned this committee. So इस committee का नाम उन्होंने बोला parliament में, जब वो ये बिल को पेश कर रहे थे. तो उस कमेटी का क्या, what is the name of the committee? Set up to study social, economic and educational condition of Muslims in India. And I'll be very happy if you tell me the year in which this was done and who was the prime minister at that time. बताइए. आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू आंसर. प्लीज आंसर इट, बिकॉज अगर आपने देखा होगा वीडियो तो उसमें वो इस कमेटी का नाम ले रहे हैं. यस मिशिका, यू आर राइट, बट थोड़ा सा आपकी स्पेलिंग गलत है, बट ओके फाइन, आई विल कंसिडर. सच्चर कमेटी दैट्स कॉल्ड. यस, जस्ट सेइंग यू आर राइट. हाँ, मनमोहन सिंह 2006-5-6, हाँ, ठीक है. सो एक्चुअली एंड हु वाज सच्चर? When this person, who was this person? He was actually the retired, now he's dead, so he's retired Delhi High Court Chief Justice. So under him a committee was set up, Sachar committee, okay, to find out social economic conditions of Muslim in India. So 2005 में बनाया गया, तो 2006 तक रिपोर्ट आई थी, बट आप चलो 2005-6 लिख सकते हो. और मिस्टर मनमोहन सिंह was the प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, ठीक है. ओके, अब देख सकते हो, है ना. ओके, yes, just saying Mishika, you are right, Tanishka. हाँ, अब देखो यही है, this is actually the socio-economic conditions of Muslims in India, ठीक है. Prime Minister's High Level Committee, और नवंबर 2006 में फाइनल रिपोर्ट आ गई थी. ओके, so that is what you should be knowing about it. Now, so इसमें जो चेयरपर्सन का नाम बस याद रखना है, जस्टिस राजेंद्र सच्चर. बाकी मेंबर्स सेक्रेटरी, I don't think they'll be asking, just remember the chairperson name. Now, there's another question. Central Waqf Council is a constitutional body, statutory body, executive body, attached office under chief minister's office. कौन सा सबसे perfect answer है? There's a request, guys. Everyone, please press the like button and subscribe to our channel also. Yes, just saying is right. Statutory body. अभी मैंने अपना बताया भी था. Actually, there was a Waqf Act was originally passed, है ना, in 1954. जो मेन एक्ट आया था वक्फ 1954 में. Then some changes were brought in I think 1993 के 95 के आसपास, है ना. And so these all are parliamentary laws, under which Central Waqf Council is actually formed. ठीक है. Yes, so B is the right answer. Yes. Nive, Mishika, Tanishka, you all were right. ठीक है. Now, so Waqf bill referred to joint parliamentary committee, and as opposition said draconian and all. So these things were in the news. Now, when we are talking about Waqf, please tell me, Waqf in India is the largest landowner. Dash first, second, third, fourth. What is the right answer? So see third, after which two? Yes, Tanishka, just saying Vidisha Jain, you are right. Yes, Tanish Singh, yes. Vidisha. After which two? After defense and railways. Railways और defense के पास सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो वक्फ के पास है, third. Okay, so that is what in fact mentioned in the everywhere you will find it in articles. Now there are some issues with the Waqf board, which I'll be discussing little bit. देखो पहले issues क्या है? तो the first issue is whenever you will find huge land, जहां पे भी जमीन हो या पैसा हो, money हो, so the chances of corruption is very high. So इसमें allegations ये लगे बहुत जगह कि of course
those who are the board members, not everywhere, but yes, there are places where actually the corruption we have seen as far as बोर्ड मेंबर्स आर कंसर्न. तो उसके जो चेयरमैन या जो स्टेट में कुछ एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई चेयरमैन हुआ या मेंबर्स हुए, उन लोगों ने अपने फायदा के लिए मतलब सारा काम किया और मतलब जो रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया. सो दिस इज वन बिग एलिगेशन. ओके है ना. सो वक्फ बोर्ड्स आर इंडियाज बिग लैंडलॉर्ड्स एंड ऑल. ठीक है, आप देख सकते हो दे आर हैविंग थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर्स एंड आफ्टर आर्म फोर्सेस एंड रेलवेज. ठीक है, एक और जो इशू है विच एक्चुअली इज मेंशन्ड हियर है ना, अगर आप देखोगे, the attitude of the state government and their agencies has resulted in large scale abrogation of cherished and charitable objectives of the work property. But even the Sachar committee has said that in fact they have issues with the governments, the state government, in the sense that sometimes the government or the state government has actually dispute with waqf property. मतलब इनका एलिगेशन ये है कि कई जगह स्टेट गवर्नमेंट ने ही कैप्चर कर लिया हमारी जमीन. दैट इज व्हाट. सो उससे होता ये है कि जब डिस्प्यूट होता है, सो इट गोज एक्चुअली इनटू द कोर्ट. तो जैसे ट्रिब्यूनल से मामला चलता है, देन इट गोज टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ऑफ कोर्स. सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज एसोसिएटेड विद दैट. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. जैसे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हिस्सा है. सो दैट इज व्हाट दे हैव सेड अकॉर्डिंग टू द सच्चर कमेटी रिपोर्ट, that it would be seen that the attitude of the state government and their agencies has resulted in large scale abrogation of the cherished and charitable objectives. फिर इन्होंने कोट किया कि 1976 में इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो जो वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा किया उसको वापस लौटा दे. सो दीज आर, दैट इज व्हाट द सच्चर कमिटी इज सेइंग. खैर, सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वक्फ अमेंडमेंट बिल. इस बिल का जो ऑफिशियल नाम है, इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज नॉट द ऑफिशियल नेम, द ऑफिशियल नेम इज यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसको उम्मीद कहते हैं, है ना. तो 1995 का जो कानून है उसका नाम बदल दिया गया. उसका नाम था वक्फ एक्ट 1995. सो दिस एक्ट इज बीइंग चेंज्ड. इसको बदला जा रहा है. ठीक है, तो पहली बात तो नाम बदल दिया गया, नाम कर दिया गया उम्मीद. सो द नेम इज, देखो अभी बिल है, इट हैज नॉट बीन पास्ड येट, but okay, we'll be discussing it. So Unified Waqf Management Empowerment Efficiency and Development Act 1995. So Umeed Act. ठीक है. So first thing क्या किया, नाम बदल दिया गया. The second thing is, if you see, the act allows to be formed by declaration recognition based on long-term endowment when the line of succession ends. वक्फ औलाद. देखो अब क्या होता है, अगर लाइन ऑफ सक्सेशन एंड हो गया तो फिर कैसे एक्वाइज. देखो होता है क्या, जैसे मान ली कोई मुस्लिम फैमिली है, मान ली कोई बंदा अकेला एक्स पर्सन है, इसके पास बहुत जमीन है, बहुत लैंड है, और जस्ट इमेजिन कि इसका कोई रिलेटिव बचा ही नहीं, नो रिलेटिव इज लेफ्ट. जस्ट इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस होता है ना, इसकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हो, नो रिलेटिव्स और समथिंग लाइक दैट. इन दैट केस ऑफ कोर्स इट गोज टू द वक्फ एंड ऑल. ठीक है, तो इसी की बात करें कि हाँ, एंडोमेंट व्हेन द लाइन ऑफ सक्सेशन एंड्स. ठीक है, बट इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन डिनायल ऑफ इनहेरिटेंस राइट्स टू द डोनर्स हियर इंक्लूडिंग वुमेन्स हियर. ओके, लेकिन हियर मतलब क्या होता है, उनके जो सक्सेसर हो, मान ली कोई आदमी एक्स, उसके पास जमीन थी, लेकिन उसके सक्सेसर है, बेटा नहीं होगा, भतीजा होगा, है ना, भांजा होगा, लाइक दैट. इवन इफ इट इज अ मेल और अ फीमेल, ही और शी शुड गेट इट. ऐसा नहीं है कि उसे डिनाई कर दिया जाए. ओके, ऐसा नहीं कि वी शुड गिव. ओनली इन दैट केस जब कोई भी रिलेटिव नहीं बचा, कोई भी सक्सेसर नहीं बचा, इन दैट केस ऑफ कोर्स इट विल गो, है ना. सो दैट इज व्हाट. Now, the next thing this is talking about is that only a person practicing Islam for at least 5 years may declare a waqf. वक्फ क्या होता है? I have just told you, तो डोनेशन होता है कि चलो हम मर रहे हैं तो उससे पहले हम कुछ जमीन दे देंगे, डोनेट कर देंगे. But who can donate to the waqf according to this law? जो बंदा एटलीस्ट 5 ईयर तक मुस्लिम हो, मिनिमम. मतलब फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज अ पर्सन हु इज फ्रॉम सम अदर रिलीजन, X religion से he converted to Muslim Islam, so he became a Muslim, और इनके पास जमीन थी, and he donated it to the waqf. Okay, and he just converted to the Islam, let's say 2 years back or 1 year back. So in that case he cannot donate. At least he should be Muslim for 5 years. After that he can donate. इस बिल में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान है या कोई मुस्लिम बना किसी और रिलीजन से, तो कम से कम उसको 5 साल तक वैसे रहना होगा, उसके बाद ही वो डोनेट कर सकता है. ठीक है, दैट इज व्हाट इट सेज. दूसरी बात एक और चीज है, द पर्सन मस्ट ओन द प्रॉपर्टी बीइंग डिक्लेयर्ड. एक्चुअली ये सभी कभी कभी होता था कि किसी और की प्रॉपर्टी होती थी, किसी और के नाम पर दे दिया, एंड आल्सो दीस थिंग्स. आई मीन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लैंड्स,
These are the issues कि जमीन किसी और के नाम पर उसने वक्फ कर दी or something like that. So of course whenever we talk about land, a lot of land related disputes happen and all. Okay, so that is what is being talked about. Now the bill states that any government property identified as waqf will cease to be so. The collector of the area will determine ownership in case of uncertainty, submit a report to the state government. हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया जैसे सच्चर कमेटी एंड अदर रिपोर्ट्स में कई बार ऐसा होता था कि स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस वक्फ में इशू होता था कि मेरी जमीन है, मेरी जमीन है. सो दैट टसल वाज आल्सो देयर. सो नाउ हु विल बी द पर्सन हु विल डिटरमाइन कि किसकी जमीन है? सो ऑफ कोर्स इट विल बी द कलेक्टर. कलेक्टर मतलब डीएम डिटरमाइन करेगा कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग इन दिस. अब इसमें जो है देयर आर सम इश्यूज जैसे व्हिच वाज एक्चुअली हाइलाइटेड बाय द ऑपोजिशंस एंड दैट इज कॉल्ड एज द कांसेप्ट ऑफ, मतलब उन लोगों ने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है. दैट इज व्हाट द ऑपोजिशन सेड. ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? मतलब होता क्या है, दे सेइंग कि ऑन वन साइड इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस वक्फ, तो डिसाइड कौन करेगा? द फर्स्ट डिसीजन मेकर इज द कलेक्टर यानी डीएम, हु शुड बी गिवन. बट द डीएम जो होता है ना, वो तो गवर्नमेंट ही का पार्ट होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट ही के अंदर में एक ऑफिसर होता है. So those who have opposed it, they have said it is violating the principle of natural justice. तो कोई और independent party होना चाहिए. This is actually the things being talked about. However, इसके ऊपर भी जाया जा सकता है. मतलब ये ऐसा नहीं कि डीएम का ऑर्डर उसके या फिर ट्रिब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है. मतलब समझ रहे हो ना? So this is one thing they have highlighted. तो जो चीज हाईलाइट की मैं आपको बस बता दे रहा हूँ. You agree or disagree, it is up to you. You agree with the opposition, you agree with the government, that is your opinion. ठीक है? Okay, the next is survey of the waqf. पहले क्या होता था, है ना, कि द सर्वे कमिश्नर होते थे, एडिशनल कमिश्नर होते थे, वो सर्वे करते थे, फाइंड आउट करते थे कितना किसका जमीन है. ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज सर्वे. बट नाउ इट विल बी डन बाय द डीएम और द कलेक्टर. ओके, अब जो है सर्वे कमिश्नर की जगह जो कलेक्टर होंगे वही सर्वे करेंगे, अच्छा ये वक्फ की इतनी हिस्सा जमीन है, और उसको ईयर मार्क करेंगे कि अच्छा ये इतना जमीन है ना. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड एज सर्वेइंग. Now, अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो है जो मेन इश्यूज है which has been highlighted is कि अच्छा सेंट्रल वक्फ काउंसिल में यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज जो भी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर होंगे, he will be the ex officio chairperson of the council. जो ex officio chairperson मतलब whosoever is the minister will automatically become the chairperson. तो the act requires, the act मतलब ओरिजिनल एक्ट, we are talking about 1995 एक्ट में क्या लिखा है कि सारे मेंबर्स मुस्लिम होना चाहिए और एंड एटलीस्ट 2 वुमेन होना चाहिए. ठीक है, सो ओरिजिनल 1995 के एक्ट में लिखा है कि ऑल मेंबर्स शुड बी मुस्लिम्स इन दिस केस. ठीक है, और 2 वुमेन होना चाहिए. जो बिल है जो अमेंड कर रहा है उसमें क्या कर रहा है कि नहीं, 2 नॉन मुस्लिम्स कैन आल्सो बी देयर. तो इस पर बहुत सारे अपोजिशंस को एतराज हुआ. सो मेनी अपोजिशन पीपल वेर प्रोटेस्टिंग दैट व्हाई इन द वक्फ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स. तो ये एक मेन चीज था व्हिच वाज एक्चुअली रेज्ड बाय द अपोजिशन. MPs former judges eminent person appointed to the council are need not to be Muslims. अगर कोई MP है, कोई फॉर्मर जज है या eminent person है तो उनको मुस्लिम होने की जरूरत नहीं अगर वो उसके मेंबर बनेंगे. ओके, फॉलोइंग मेंबर्स मस्ट बी मुस्लिम. हालांकि ये जैसे अगर रिप्रेजेंटेटिव किसी ऑर्गेनाइजेशन के तो मुस्लिम्स रह सकते हैं. ठीक है, कोई स्कॉलर है इस्लामिक लॉ के तो वो भी रह सकते हैं. चेयरपर्सन ऑफ वक्फ बोर्ड्स, जो डिफरेंट स्टेट्स की वक्फ बोर्ड्स होते हैं उनकी चेयरपर्सन मुस्लिम रह सकते हैं. ठीक है, और 2 वुमेन जो वो मुस्लिम्स रहेंगे. बट उसके बाद ओवर एंड अबव देयर शुड बी 2 नॉन मुस्लिम्स, जो ओरिजिनली 1995 एक्ट में नहीं था. So this was one thing that was raised by the opposition. The next is the act provides for election. अच्छा, election of 2 members each from electoral college of Muslims. ठीक है, तो 2 लोग का elections भी होगा, MPs, MLAs and MLCs and bar council members from the state to the board and all. ठीक है, अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है, बट अब इसमें क्या हो रहा है कि नॉमिनेशन होगा. ठीक है, इसमें कैसे होगा? The state board members must have 2 non-Muslim members. ये एक मेन चीज है. ठीक है, which has been highlighted. फिर इट विल बी फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज. तो डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं मुस्लिम्स में, जैसे शियाज, सुन्नीज, ठीक है, बोहरा, अगर खानी कम्युनिटीज. सो दे मस्ट हैव देयर रिप्रेजेंटेशन इन द बिल्स आल्सो. और उसमें 2 वुमेन भी रहेंगे. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड नो. अब देखो इसमें क्या होता है कि ट्रिब्यूनल्स होता है. ट्रिब्यूनल्स क्या होता है? ट्रिब्यूनल्स इज वेरी सिमिलर टू अ कोर्ट. अदालत की तरह काम करती है, मैंने आपको बताया भी कई बार. ओके, नाउ इसमें क्या होता है? तो एक्ट मतलब ओरिजिनली जब 1995 का एक्ट था, इसमें क्या था, जब ट्रिब्यूनल होता था उसमें चेयरमैन ऑफ द ट्रिब्यूनल मस्ट बी अ जज ऑफ द रैंक इक्विवेलेंट टू क्लास 1 मतलब डिस्ट्रिक्ट जज एंड ऑल. तो जो चेयरमैन होते थे, जो ट्रिब्यूनल है ना, उनके जो चेयरमैन होते थे वो डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के ऑफिसर होते थे या क्लास 1 ऑफिसर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या जज. ठीक है,
और जो मेंबर्स होते थे, एक और जो बाकी मेंबर्स होते थे, एक एडीएम रैंक के ऑफिसर होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो डीएम से एक रैंक नीचे होता है, उसको कहते हैं एडीएम, ठीक है। और ए पर्सन नॉलेजेबल इन मुस्लिम लॉ, एक पर्सन, उसी में एक और मेंबर होते थे, पर्सन जो कि मुस्लिम लॉ में जिनका काफी नॉलेज हो। ओके, दिस वाज द केस। ना ये पुराने एक्ट में था, 1995 एक्ट में। द न्यू एक्ट सेज इट इंस्टेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एज मेंबर्स, ठीक है, अ करंट, अ फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज, अ करंट, अ फॉर्मर ऑफिसर ऑफ रैंक और जॉइंट सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। यानी लास्ट वाला जो लाइन है कि पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ मुस्लिम लॉ, ये वाला हटा दिया गया। और अब जो है नए ट्रिब्यूनल जो होगा उसमें जो चेयरमैन रहेंगे, ठीक है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के ऑफिसर रहेंगे या फॉर्मर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, और मेंबर जो रहेंगे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर रहेंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट जनरली आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस सेज, ठीक है। अंडर दिस द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑफ फाइनल अपील अगेंस्ट दिस आर प्रोहिबिटेड। देखो जनरली क्या होता है, इसमें डिटेल नहीं जाना, पहले ये बोलते थे लोग कि 1995 के लॉ के अंदर जो ट्रिब्यूनल्स का ऑर्डर था वो फाइनल था और कहीं और अपील नहीं किया सकता था, जबकि बात 100% 100% नॉट, इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज यस यू कैन फाइल एन अपील इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब जो नया लॉ लाया गया है उसमें क्या है, सबसे द बेस्ट थिंग इज, हाँ, द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर में भी अपील द हाई कोर्ट विद इन 90 डेज। अगर ट्रिब्यूनल ने कोई हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया सकता है। नो, अब कुछ लोग ये बोले थे, हैव रेड इट डिफरेंट ओपिनियंस एंड ऑपोजिशन लीडर्स ओपिनियन, कि जो पहले वाला लॉ था उसमें ट्रिब्यूनल का लॉ जो ऑर्डर था वो कंप्लीटली फाइनल था। ये भी कहना इट इज नॉट करेक्ट। हालांकि यहां पर लिखा हुआ है, देखो, कि अंडर द लॉ द डिसीजंस ऑफ द ट्रिब्यूनल्स आर फाइनल एंड अपील्स अगेंस्ट इट डिसीजन आर प्रोहिबिटेड। द हाई कोर्ट कैन कंसीडर मैटर ऑन इट्स ओन अकॉर्ड ऑन एन एप्लीकेशन बाय द बोर्ड और एग्रीड पार्टी। तो जनरली ये माना जाता था कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर फाइनल है और इसमें जनरली अपील नहीं होता था, जबकि ये बात 100% सही नहीं है। व्हाई? द रीजन इज बिकॉज देयर वाज अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यही आपको बताना है, in which it said that the order of a tribunal can easily be challenged in a high court। वो कौन सा जजमेंट है आपको बताना है, और किसी भी ट्रिब्यूनल के लिए, चाहे वक्फ ट्रिब्यूनल हो या एनजीटी ट्रिब्यूनल हो, किसी भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, चाहे अगर लॉ में लिखा हुआ भी है, इवन इफ इट इज रिटन दैट यू कैन नॉट चैलेंज इन हाई कोर्ट, स्टिल इट कैन बी चैलेंज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज किया सकता है। जैसे मान लीजिए एनजीटी ने ऑर्डर पास किया, नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल, सो दैट ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन हाई कोर्ट and of course later in supreme court also if the party do not get the relief या the judgment favorable। तो कौन से लॉ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा, कोई बता सकता है एनीवन? प्लीज टेल मी गाइस। सो एक्चुअली इसको कहते हैं एल चंद्र कुमार केस, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें ये कहा गया था, है ना, कि द डिसीजन ऑफ सच ट्रिब्यूनल्स, है ना, द ट्रिब्यूनल्स आर नॉट इक्वल टू हाई कोर्ट्स एंड द डिसीजन ऑफ सच ट्रिब्यूनल शैल बी अपील्ड बिफोर अ टू जज बेंच ऑफ हाई कोर्ट। मतलब 2 जज की बेंच होनी चाहिए उसमें। ये सरवान खन्ना, यू राइट, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसीलिए इवन टुडे आल्सो, तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई वक्त का इश्यूज आएगा, इनिशियली इफ देयर इज अ डिस्प्यूट इन द लैंड, द फर्स्ट इट विल बी डिसाइडेड बाय द कलेक्टर, और कुछ इश्यूज होगा देन इट विल गो टू द ट्रिब्यूनल एंड इट विल गो टू द हाई कोर्ट एंड इट विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर, यस दानश्री पारक, यू आर राइट। नाउ अब इसमें यह था ना कि आई रेड समवेयर कि 1995 को जो एक्ट था इसमें बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया था, ठीक है। यस इट्स ट्रू, बट व्हिच बिल सेज दैट वक्फ विल, हां, बट देयर इज सम इश्यूज। ये कहना कि एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी, आई थिंक दिस इज स्लाइटली ऑन अ हायर साइड। उसका रीजन ये है कि अगेन व्हेन यू आर सेइंग सम, आई saw some people writing कि द वक्फ हैड द पावर टू स्नैच एनी लैंड, कि किसी भी जमीन को खींच ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। द रीजन इज देयर वाज अ ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल उस टाइम पर भी था, और एल चंद्र कुमार केस के हिसाब से इट कैन बी, द ऑर्डर कैन बी पास्ड इन चैलेंज इन हाई कोर्ट एंड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये कहना कि 100% एब्सोल्यूट पावर था, आई थिंक इट्स विल बी स्लाइटली एग्जैजरेशन, की उतना ज्यादा था, बट यस मे बी 1995 लॉ देयर माइट बी सम मोर पावर्स एंड ऑल, ओके। तो बट यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल एग्जिस्टेड इवन बिफोर दिस बिल, ठीक है। इससे पहले भी ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ओके। सो आई थिंक इट्स क्लियर। तो यही आपको पता होना चाहिए कि यस, इवन इफ द लॉ सेज कि the order passed by the tribunal cannot be challenged in the Supreme Court, but still it can be challenged, ठीक है। देखो, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड 2-3 चीज समझो। जैसे मान लो किसी, जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है। इसमें इश्यूज क्या होता है,
इसमें इशू होता है एक लेट जजमेंट, बहुत स्लो जुडिशियल प्रोसेस है। अब कोई डिस्प्यूट हुआ तो इतना सालों साल तक जमीन का डिस्प्यूट चलेगा, या जैसे वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये बहुत दिनों से चला रहा है, कई सालों से। ओके, सो वन ऑफ द इश्यूज हाईलाइटेड वाज दिस। सेकंड, अगर लॉ में लिखा हुआ भी है ना दैट द अपील कैन नॉट बी फाइल्ड इवन इन द सुप्रीम कोर्ट, ऐसे बहुत सारे वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स में लिखा होता था कि कोर्ट में नहीं चैलेंज किया सकता, बट स्टिल द सुप्रीम कोर्ट कैन हियर द मैटर अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, तो पहली बात तो ये दिमाग से दम निकाल लीजिए कि किसी भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर इतना फाइनल होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज नहीं किया सकता, इतना फाइनल किसी भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर, एटलीस्ट इन वर्स्ट सर्कमस्टांसेस सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज किया ही जा सकता है किसी भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर इंडिया में, एंड आफ्टर एल चंद्र कुमार केस इवन इन द हाई कोर्ट ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, सो एनीथिंग पास्ट है ना, तो ये आपको मतलब जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस यू शुड नो इट। Okay, so the bill empowers the central government to make rules and all, तो ठीक है ये सब। The bill empowers the central government to be audited by CAG or a designated officer. Yes, this is very important. देखो actually क्या है, there was the main allegation against वक्फ बोर्ड was इसमें बहुत सारे करप्शंस भी होते थे, करप्शन के भी बहुत सारे एलिगेशन लगे थे कि जो वक्फ बोर्ड में मेंबर्स होते थे एंड ऑल, कई सारे स्टेट्स में ऐसा देखा गया कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। तो अब उस करप्शन को पकड़ना है तो क्या करना होगा, हिसाब निकालना होगा, ऑडिटिंग है ना। ऑडिटिंग मींस व्हाट, सो कैलकुलेट कि भाई कितना हिसाब हुआ, कितना खर्चा आया, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कहां गया पैसा, है ना, दैट्स व्हाट इज ऑडिटिंग। तो उसके लिए सीएजी इज एन एजेंसी, तो सीएजी भी वक्फ को ऑडिट कर सकती है, या अगर कोई और डेजिग्नेटेड ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जाए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर, यू गॉट इट, है ना, है ना। तो यही बता रहे कि बिल में ये भी कहा कि अगहानी बोहरा सेक्ट भी होता है मुस्लिम्स में, शिया सुन्नी एंड ये सब, तो इन लोग के लिए भी एक सेपरेट वक्फ बोर्ड का प्रोविजन होना चाहिए, है ना। सो दीस आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, राइट। इससे ज्यादा नहीं जाना, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ, बिकॉज वंस इट विल कम सो विल डिस्कस मोर। तो अब ये बताओ कि द पार्लियामेंट हैज सेंट द बिल टू द जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, व्हाट इज द राइट आंसर, बताइए प्लीज टेल मी। Yes, just saying you're right, 31. कितने लोकसभा से, कितने राज्यसभा से, how many from Lok Sabha, how many from Rajya Sabha? Yes, 21 from Lok Sabha, 10 from Rajya Sabha. Yes, just saying, very good. 21 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha, है ना। Yes, मुक्ति शर्मा, अरमान खन्ना, just saying you all right, है ना। ठीक है, सो दीज आर द मेंबर्स, उसमें अपोजिशन की मेंबर्स हैं, रूलिंग पार्टी के भी, आप देख लेना सारा नाम अगर आप चाहते हो तो यू कैन रीड इट। ठीक है, राज्यसभा में ये सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। सॉरी, बीजेपी लाइज। तो हुआ ये था कि एक्चुअली क्या है कि व्हेन द बिल वाज प्रोड्यूस्ड, सो द मेन फॉर अलाइज आर जेडीयू एंड टीडीपी, यही नो है ना। सो जेडीयू ने तो सपोर्ट किया, इवन टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी ऑफ चंद्रबाबू नायडू आल्सो सपोर्टेड। जेडीयू इज ऑफ नीतीश कुमार, मिस्टर नीतीश कुमार, एंड चंद्रबाबू नायडू इज तेलुगु देशम पार्टी। However, one MP actually said कि the matter should be referred to JPC. TDP के एक MP हैं, इनका नाम है GM हरीश बाला योगी। इन्होंने कहा कि I would not mind if the bill is sent to the parliamentary panel या JPC। ठीक है, तो इसके बाद जब उन्होंने ये बात बोली तब जो है JPC को ये बात रिकमेंड कर दिया गया। So that will be come in the next session, जो नेक्स्ट सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसमें जेपीसी का जो रिपोर्ट है वो आएगा, द रिजल्ट, है ना। देन वी विल डिस्कस देयर इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द शॉर्ट अबाउट द वक्फ बिल। चलो कुछ क्वेश्चन है, मैंने आपको होमवर्क दिया था अभी, अगर आप अभी बताओ तो आई विल बी वेरी हैप्पी, सो आई विल डिस्कस हियर। व्हाट इज द नेम ऑफ द अयोध्या डिस्प्यूट जजमेंट? सो द फाइनल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केम इन नवंबर 2019। क्या नाम क्या है इसका, कोई बता सकता है? मैंने होमवर्क दिया था पहले कई बार, आई हैड गिवन यू द होमवर्क। एनीवन? एम सिद्दीक वर्सेस महंत सुरेश दास केस, ये था जजमेंट का नाम। ठीक है, याद रखिएगा।
मैंने होमवर्क दिया था, किसी ने लाया नहीं। हाँ यस, मुक्ति शर्मा, राइट, वेरी गुड। हाँ ठीक है, दिस इज द जजमेंट। और द डेट ऑन विच बाबरी मस्जिद वाज डेमोलिश्ड, प्लीज टेल मी। ये होमवर्क है, गो एंड फाइंड आउट एंड नीचे आंसर में कमेंट में लिखना, ठीक है। सो दिस इज A1, ओके। देन एक होमवर्क ये है, दिस इज A2, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया बताना है। A3 है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। A4 है फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और A5 है दिस, मूक नायक was a Marathi fortnightly newspaper founded by Dash in 1920। जब मैं ये पूछा हूं डेट, मतलब एग्जैक्ट डेट बता रहा, मतलब डेट और ईयर दोनों, डेज मंथ ईयर सब, ठीक है। सो आफ्टर द क्लास इज ओवर, हाँ यस, जस्ट सेइंग, वेरी गुड, यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली। सो आफ्टर द क्लास इज ओवर, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, नीचे कमेंट में लिखना A1 का आंसर, A2 का आंसर, A3 का आंसर, A4 का आंसर, A5 का आंसर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।